and I got 7 injections. Oh no! अच्छा बोला नहीं जा रहा यार, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को लाना। समोसे लाऊं? अच्छा ठीक है, पानी पूरी। अच्छा चल ठीक है यार, पिज़्ज़ा। नहीं खिलाना तो ऐसे ही बोल देना, भूखा मरना है। क्यों कराई मैंने ब्रेसेस? क्यों? इट्स हर्टिंग। पानी लो, पानी। भागे ऐसे। Hi everyone, I am Annie and welcome back to my channel. So today's topic is all about it's kind of exciting and thrilling. No, it's more kind of revealing sort of video. Revealing what? Why? Braces. So I have recently got my braces. It's like 10 days before I got my braces, and I am here to share my personal experience and a lot of things that I have been searching before applying braces on my teeth, but I didn't get any of the answers from the YouTube. I searched a lot of videos. Like there are many sort of videos sharing the braces journey and all sort of common things which everyone goes through, but the little initial stage problems which are to be faced by everyone, that's not anywhere explained and answered. So I have decided to come up and share my experience of the recent 10 days, what I'm going through and what sort of pains I'm getting in. Let's take a moment and say goodbye to my older teeth and welcome this braces, which are sort of like, yes, it's painful, but we all know at the end it's worthful too. So we had talked a lot about it. We have welcomed it also. So let's talk in-depth things about the initial stages problem of braces and what's the cost of it, what kind of braces should you get, and what things you can eat, what do's and don'ts you have to do, what pros and cons are there, etc. etc. So let's roll in. So moving ahead to the braces and discussing about its points, do's and don'ts and pros and cons, I just wanted to let you know that in the video you can see like here it is a bit of swelling because recently before 2-3 days I got two teeth extracted from this side for braces procedure to be move on. So a bit of swelling will be seen here, that would be fine soon in 2 to 3 days, so please avoid that. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ वाई डिड आई गॉट ब्रेसेस, मैंने ब्रेसेस क्यों करवाई? तो ब्रेसेस कराने का मेरा एक ही सिंपल रीज़न था, एज आई हैव अलाइनमेंट इश्यूज़, बट दैट डजेंट मैटर मी एट ऑल। मैंने ब्रेसेस करवाई क्योंकि मेरे फ्रंट के 2 टीथ्स में, सामने के जो आपके 2 टीथ्स दिखेंगे उसमें अनयूजुअल गैपिंग हो रही थी। एंड जब मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड आई गेट टू नो कि इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट द ब्रेसेस इज़ द सॉल्यूशन। आई थॉट एंड डिसाइडेड टू गो फॉर इट। मैं ब्रेसेस के लिए पिछले 1 साल से सोच रही थी, बट नॉट बिकॉज ऑफ द गैपिंग, गैपिंग तो अभी आने लगी है, जस्ट अलाइनमेंट इश्यूज़ की वजह से। बट दैट गैप मेक मी टोटल 100% श्योर कि अब मुझे ब्रेसेस कराने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो अदर वे टू एस्केप and I have to go for braces only. This was the main reason I have to go for braces, and yeah, this is on now. So the second point and very important point is, what should you talk to your doctor before getting the braces? Like what points should you consider while getting braces on? First of all, you should understand that braces is not a 2 days treatment. It is like a 1 year to 1.5 year or more than that. It would depend on person to person. Like बहुत सारे जनों का 1 साल में भी हो जाता है, किसी किसी का 1.5 year में भी नहीं होता, और किसी का उससे भी मतलब उससे भी जल्दी हो जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपको अपने डॉक्टर से पहले ही कंसल्ट कर लेना है कि आपके कितना आपको कितने क्या ड्यूरेशन रहेगा आपके ब्रेसेस का, और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा कोई मेडिकेशंस नहीं रहते हैं। लाइक अगर आपके टूथ एक्सट्रैक्शंस हुए हैं तो आपको कुछ 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे,
पेन किलर्स देंगे, दैट्स ऑल। जब तक आपके टूथ एक्सट्रैक्शंस हो रहे हैं तब तक ही आपको पेन रहेगा, इन मेडिकेशंस पे रहोगे आप। उसके अलावा यू डोंट हैव टू टेक एनी मेडिसिन सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड या यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारे जन बोलते हैं कि इट्स नॉट दैट पेनफुल है, मतलब ये मुझे लगता है कि इट्स पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कितना पेन होता है। लाइक मुझे इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाए थे, मतलब 10 days बिफोर, तो इट वाज लाइक 2 to 3 days, इट वाज नाइटमेयर फॉर मी। लाइक रात को तो बहुत ही ज़्यादा आई गेट डिस्कम्फर्ट, लाइक हियर एवरीवेयर वेयर आर द ब्रेसेस ऑन। मतलब मुझे अभी यहीं लगे हैं, यहाँ यहाँ ब्रेसेस लगने बाकी हैं, बट the 2 to 3 days were like nightmare for me, completely nightmare. I was having eating problems, brushing problems, and a lot more of that. So you should talk everything to your doctor. Consider doctor as your best friend. Discuss everything, and don't be shy in talking any point. So third point is how to decide which kind of braces should you go for. There are 3 to 4 types of braces till my knowledge. First is the metal braces, second is the ceramic one, third is the new one, Invisalign. You might have seen ads on the television or social media. Like metallic is the one which is very cheaper side. Ceramic is a way expensive than metallic, and the third is Invisalign, which is expensive than the earlier two ones, like metallic and ceramic. So metallic is like you will see a bit of silver on the braces part. It will be visible to the persons in front of you. And the ceramic is like the wire will only be visible, not the braces. You can I have put on the ceramic braces, which is not so much visible. Like if someone is this close to me, they only can see the braces. Like if I am standing in close to mirror, then only I can see my braces. Otherwise if I am standing this distance to the mirror, I myself can't see the braces. So ceramic one is a quite type of invisible only if you are not so close to the person or the mirror. And Invisalign is totally invisible, like it is not being seen, but it's way expensive than the before two I have explained you, metallic and ceramic. So it's totally upon you which type of braces you want to get on. Like if you are a person who has to address a lot of people, like I am doing YouTube right now, so I have to make videos, I have to face the camera, so I have decided to go for invisible first. But my doctor suggested me that the ceramic and metal ones are a way faster in healing process than the invisible ones, so I decided to go for ceramic ones. These are also not so visible, but that's okay for me. So if you are totally a shy girl or a shy person that doesn't want your braces to be shown up, so you can go for Invisalign. You can ask your doctor for that. And yeah, this is all about the kinds of braces you can go for. Okay, the fourth point is the duration of the braces. Like it is for 1 year, 1.5 year. My doctor said me that it will take 1.5 year for me to get rid of this braces totally. Like मेरे जो ये अलाइनमेंट इशू है, गैपिंग इशू है, उसे 1.5 year लग जाएगा हील होने में और पूरे अच्छे से सेटल डाउन होने में. So precisely to be 545 days to be exact, or more than it or might be lesser than it, but 1.5 year is possibly a number which is given by the doctors to most of the persons who are getting braces. So this is the minimal duration you have to, like it's not a 2 day treatment. I have said it earlier, it's not a 2 day treatment. You have to be very patient, very calmed up, and it will get habitual to you within a month or two. You'll accept it totally that yes, it's gonna be on my teeth for a year and more than it, 1.5 year at least. This is yeah, this is very discomfort right now to me. I'm speaking to you guys, but it's a bit of discomfort over here. It's touching my lips every time I'm speaking to you, but
from the first day till now, it's very much comfortable from the first day till now, and it will go on as the day passes on, as the time passes on. So yeah, you should consider getting braces if you are having alignment issues or gapping issues or the overcrowding, underbite, overbite, whatever issues. You should consult your doctor and you should get braces on. Okay, now the next point is what is the cost for braces? So I have got this braces done in around 30 to 35,000, which I don't have to pay at once. My doctor have suggested me to pay in installments. If you are wishing to have braces and this is only the one reason you are not getting it, the amount you have to spend, you can ask your doctor to get it done in installments. You don't have to pay all in once. You can also pay in installments, and that's very easier to pay and get the braces on. Just don't deny the fact to get braces because of the cost. It's very easy to pay. That's nothing to fear about the cost and like anything. So the ceramic ones are, like I told, 30 to 35,000, depends on depends in different cities. And if we talk about metallic ones, the metallic ones is cheaper than the ceramic ones. It might cost you 20 to 25,000 rupees. And the Invisalign treatment, which is very expensive than ceramic and metallic, it cost might be in lakhs. I don't know the perfect figure, the perfect amount, but I can tell you it will go like 1 to 3 lakhs within. It will fall within the range 1 to 3 lakhs. You should consider talking to your doctor, because the cost of Invisalign is different in every city. Every doctor charges a different price, so it's better to talk to your doctor. Okay, so next point is discussing about the problems in the procedure. How did I got braces? Like let's talk first about the procedure. मैं अपने डॉक्टर डेंटिस्ट को विज़िट की थी 2 मार्च 2021 को, और मैं जस्ट ऐसे ही डिस्कस करने गई थी। कुछ ऐसे ही मेरे माइंड में जो पॉइंट्स थे जो मुझे क्लैरिटी चाहिए थी जिनके ऊपर, तो आई वॉज बीन लाइक फॉर डिस्कसिंग द थिंग्स, but we ended up starting the procedure itself. Doctor just said me that your 4 of tooth will be extracted, one from each side, 2 from up, 2 from down. And on the same day I got two tooths extracted, one from up and one from down. And I got 7 anesthesias over here to get my 2 of teeth extracted. Don't fear up, ये हर किसी के साथ नहीं होता. I was the special case जिसको 7 इंजेक्शंस लगी थी. अदरवाइज इट्स डन इन 4 to 5 इंजेक्शंस. वो आपके इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि आपको बिल्कुल भी पेन फील ना हो टूथ एक्सट्रैक्शन के टाइम. ऊपर वाला टीथ तो बहुत ईजिली रिमूव हो गया, लाइक 2 to 5 मिनट्स में वो एक्सट्रैक्ट हो गया. बट नीचे वाला टीथ, द डॉक्टर वॉज ट्राइंग फ्रॉम हाफ एन आवर. They had tried every tool to pluck the teeth from my mouth, but it was not getting. At the end he took an x-ray of the teeth. Then he told me that yes, we have to do a surgery here. When he told me to that he will be doing surgery, he put 2 more injections in my lower side teeth. And after the 5th injection, I was like totally in the zone that I'm gonna go faint now. It was like totally from here to here, totally numb. One nose was blocked from the eye area to here, and this part totally was blocked, like because of the injections. Totally this part was numb down. इस वजह से बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ब्रेसेस नहीं कराऊंगी. दैट्स नॉट एट ऑल द रीज़न. बहुत ईजी है. आपको इंजेक्शंस लगने के बाद कुछ पता भी नहीं चलता है कि आपका दांत कब निकल जाता है. तो बहुत ईजी प्रोसेस है. सिर्फ इंजेक्शंस का थोड़ा बहुत पेन रहता है वो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम वाइल हैविंग ब्रेसेस ऑन. मतलब खाने में प्रॉब्लम, ब्रशिंग में प्रॉब्लम, और थोड़ा बहुत जब आपका एक्सट्रैक्शन हुआ होता है तो हल्का फुल्का सा पेन भी रहता है. पर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक एंड पेन किलर्स देते हैं. एंटीबायोटिक्स तो यू हैव टू टेक फॉर 3 days, और पेन किलर भी दी जाती है साथ ही साथ में, क्योंकि 3 days तक हल्का फुल्का पेन रह सकता है. बहुत ज़्यादा एग्जर्शन वाला पेन नहीं होता है, पर देन टू माइल्ड पेन रहता है विच इज़ बेरेबल. बट देन 2-3 days तो आपको मेडिसिन लेनी ही होती है.
और अगर 3 डेज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आपको एक और पेन किलर लिख के देते हैं, विच यू हैव टू डिज़ोल्व इन वाटर एंड टेक इट। उसके बाद तो आपको पेन होना पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम्स वाइल हैविंग ब्रेसेस इन ईटिंग। ईटिंग में तो मैं आपको यहाँ आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ देखने मिल जाएगी जिसमें मैंने क्या खाया है, कैसे खाया है और कैसे सर्वाइव किया है। आई वॉज 3 days कम्प्लीटली ऑन लिक्विड्स। मतलब मैं सुबह जूस पीती थी, नारियल पानी पीती हूँ, और जो भी खाना भी रहता था तो उसको पूरा अच्छे से ब्लेंड करके आई यूज़ टू हैव इट। मतलब आपको यहाँ पे फ़ोटोज़ देख के समझ आ जाएगा कि मैंने कैसे सर्वाइव किया है 3 days। वो बस इनिशियल कुछ डेज़ ही होते हैं जिसमें आपको खाने पीने में प्रॉब्लम रहती है। एज द डेज पास एंड प्रोग्रेसेस आपको धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाता है। ब्रेसेस इज़ काइंड ऑफ 1 or 2 months प्रॉब्लम्स। उसके बाद तो इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। जितना जल्दी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो उतना ईजी आपके लिए हो जाता है इनके साथ रहना। अब मुझे ऐसे नहीं फील होता। पहले कुछ दिन तो मुझे ऐसे फील होता था मैं अपने दांत को ऐसे रखूं क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरे लिप्स को टच किए जा रहे थे। और हाँ, मुझे एक और प्रॉब्लम बहुत हुई थी इनिशियल डेज में। मेरे को इनर और आउटर एरिया में सब जगह अल्सर्स हो गए थे क्योंकि ये जो ब्रेसेस हैं आपके लिप्स को कंटिन्यूसली टच करके रखते हैं और हमें आदत नहीं होती है उस चीज़ की, तो आपको डिस्कम्फर्ट भी होता है और साथ ही साथ में थोड़े बहुत अल्सर्स हो जाते हैं जिसके लिए डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड वो भी कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं। बट ये इनिशियल स्टेज प्रॉब्लम्स है जिसको मैंने आज तक यूट्यूब पर जिक्र होते नहीं देखा, पर मैं खुद इतना फेस कर रही हूँ। तो और जो ब्रेसेस करवा चुके हैं या करवाने वाले हैं तो मुझसे रिलेट कर पाएंगे, और जिसने नहीं करवाई और करवाने वाले हैं तो वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये सब चीज़ें हो सकती हैं और इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है। दैट्स वेरी नॉर्मल। मेडिसिन के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट यू डोंट हैव टू स्किप मील्स क्योंकि मेडिसिन आपको बहुत गर्म कर सकती है। हाई डोज की मेडिसिन होती है, तो आपको अपने मील्स बिल्कुल स्किप नहीं करना है। भले लिक्विड ब्लेंडेड फॉर्म में खाइए, बट यू हैव टू टेक इट। ओके, तो लास्ट पॉइंट है हमारा डूज एंड डोंट्स। तो डूज़ में यही है कि आपको मुझे सजेस्ट किया गया था मेरे डॉक्टर की तरफ से कि यू हैव टू ब्रश एटलीस्ट 4 times, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद और सोने से पहले। मतलब इवेंचुअली आप जब भी कुछ खाओ तो यू हैव टू ब्रश और गागल करते रहना है। तो डोज में यही आपको बोलूँगी कि आप अपने मील्स स्किप मत कीजिए, ब्रशिंग एकदम प्रॉपरली कीजिए। इनके ब्रशेस भी बहुत डिफरेंट होते हैं जो मुझे मेरे ऑर्थोडेंटिस्ट ने प्रिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँगी कि कौन से ब्रशेस आपको सजेस्ट किए जाते हैं फ्रॉम द डॉक्टर। वो ब्रशेस स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं ब्रेसेस वालों के लिए। तो डूज में यही रहेगा कि आपको मील्स बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ब्रश बिल्कुल अच्छे से करना है, ओरल हाइजीन का सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना है। ओरल हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एटलीस्ट 1.5-2 साल, तो जब तक आपके ब्रेसेस उतर नहीं जाते हैं। तो दिस आर द डूज एंड डोंट्स में ये आता है, वो आपको अपने डॉक्टर भी बता देंगे और मैं भी बता रही हूँ कि डोंट्स में यही है कि आपको अपने ब्रेसेस पे प्रेशर नहीं डालना है। जैसे हैवी हार्ड बाइट्स नहीं करने हैं, लाइक पानी पूरी, पिज़्ज़ा और नट्स, पापड़, खिचिया, अगर जो भी आप खाते होंगे तो वो सब आपको, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब आपको अवॉइड करनी है। और नहीं अवॉइड भी कर सको तो आपको उनको एकदम स्मॉल स्मॉल बाइट्स में करके खाना है। यू डोंट हैव टू प्रेशर योर ब्रेसेस एट ऑल, वरना फिर वो ब्रेक हो जाएंगे और आपको फिर से वो ब्रेसेस की प्रोसीजर फॉलो करके वापस ब्रेसेस लगवानी पड़ेगी। सो इट्स बेटर नॉट टू हैव हार्ड फूड फॉर एटलीस्ट 1.5 year और मोर देन डैट, जब तक ब्रेसेस है आपके ऊपर। लास्टली इसके प्रॉज एंड कॉन्स कुछ खास नहीं है, बस यही है कि पेन है प्रोसीजर में, पेन थोड़ी पेनफुल है प्रोसीजर और थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, पर एट द एंड हम ये भी जानते हैं कि द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 नाइस। इट्स गोइंग टू बी वर्थफुल, फ्रूटफुल। आपकी स्माइल जो है वो आपके पूरे पर्सनालिटी को एनहेंस करेगी आफ्टर गेटिंग कंप्लीट ब्रेस। मतलब आपका ब्रेसेस पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाने के बाद, इसका प्रोसीजर पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाने के बाद। सो इफ़ इट्स पेनफुल, इट इज़ वर्थफुल। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पे है कुछ पाने के लिए कुछ दर्द सहना पड़ता है। सो या गाइज, दिस इज़ इट। मेरा अभी तक का 20 days का पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कहीं नहीं आपको देखने मिलेगी पर मैंने आपको यहाँ बताई है। टोटली प्रोसीजर से लेके
उसके इनिशियल स्टेज प्रॉब्लम से लेके प्रॉस कॉन्स डूज डोंट्स सब कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किया है। और अगर फिर भी कुछ यहाँ रह गया है जिसे मैंने कवर नहीं किया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने भी ब्रेसेस करवाए हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने स्ट्रगल्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो। और अगर आप करवाने वाली हो ब्रेसेस तो ऑल द बेस्ट, डोंट फियर अप, थोड़ा सा करेज दिखाओ और रिजल्ट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, और पहले से सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू ऑल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय लवली।